شیربینا پالنی ریڈیو سری نگر سے میڈیم ویو 268.81 میٹر FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آل انڈیا ریڈیو کپواڑہ اور بدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آل انڈیا ریڈیو کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس آج شروع ہوا، البتہ اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے باعث پارلیمنٹ کی کارروائی بدھوار تک ملتوی کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق لوک سبھا میں اڈانی اور منی پور کے معاملے پر بحث کرانے کی مانگ کو لے کر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے باعث بار بار کی خلل کے بعد ایوان کی کارروائی ملتوی کرنا پڑی ہے۔ حالانکہ لوک سبھا میں پریزائڈنگ آفیسر سندھیا رائے نے نظم و ضبط برقرار رکھنے کی اپیل کی، البتہ اپوزیشن ممبران پر اثر نہ دیکھ کر کارروائی 27 نومبر تک ملتوی کی گئی، جبکہ سماجوادی پارٹی کے ممبر دھرمیندر یادو نے سنبھل اتر پردیش میں تشدد کے معاملے کو اٹھایا۔ جو ہی آج اپوزیشن ممبران شور مچاتے ہوئے ویل میں داخل ہوئے تو ایوان کی کارروائی برخاست کی گئی۔ واضح ہے کہ آج صبح سرمائی اجلاس کے پہلے دن جب اپوزیشن کی کارروائی شروع ہوئی تو لوک سبھا نے ایوان کے رکن رہے سابق متعدد افراد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی طرح راجیہ سبھا میں بھی اپوزیشن ارکان نے اڈانی رشوت کانڈ معاملہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی شور و غل میں ایوان کی کارروائی ملتوی کی گئی۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے سرمائی اجلاس کی کارروائی شروع ہونے سے قبل اپوزیشن سے عوام کی امنگوں کو پورا کرنے اور عالمی برادری کی توقعات پر پورا اترنے کی درخواست کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ سرمائی اجلاس ہے، اس لیے ماحول بھی سرد رہے گا، جبکہ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ اجلاس میں صنعت کار گوتم اڈانی کے خلاف الزامات پر بحث ضروری ہے تاکہ بیرون ملک میں ملک کی شبیہ کی حفاظت کی جا سکے۔ اس دوران آج سری نگر میں پردیش کانگریس کی جانب سے احتجاج کیا گیا، جس میں مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ فوری طور بحال کیا جائے۔ آج پارٹی کے صدر دفتر مولانا آزاد روڈ پر کانگریس لیڈران اور ورکر جمع ہوئے اور احتجاجی مارچ شروع کیا، تاہم پولیس نے آگے مارچ کو بڑھانے کی اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر پردیش کانگریس کے صدر طارق حامد کرا نے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو یاد دلایا کہ انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ اسمبلی چناؤ کے بعد ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا، وہ وعدہ جلد پورا کیا جائے۔ طارق حامد کرا نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے دوران ہی ریاست کا درجہ بحال کرانے کا مطالبہ کیا۔ ہمارے یہاں پہ ملنے کا جو مقصد اور مدعا ہے وہ نظام صاحب نے مدلل طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ آج ہم ملک کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب کو، وزیر داخلہ جناب امت شاہ صاحب کو اور تمام مرکزی قیادت کو، مرکزی سرکار کو اپنا وہ عندیہ ریٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے تحت آپ نے پارلیمنٹ سے باہر حتیٰ کہ ریاست جموں کشمیر کی سرزمین سے بھی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہمارا جو حق آپ لوگوں نے چھینا ہے، ہماری جو آئینی گارنٹیز آپ لوگوں نے چھینی ہے، وہ آپ واپس کریں گے۔ یہاں سپریم کورٹ کے حکم کے تحت الیکشن تو کروائے، لیکن الیکشنز کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے اسٹیٹ ہوڈ واپس کرنے کا بھی آپ کو ایک حکم نامہ دیا تھا، جو ابھی تک آپ نے پورا نہیں کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بات کروں کہ 19 سپٹمبر کو جب وزیر اعظم ہند سری نگر آئے الیکشن کے سلسلے میں، جو انہوں نے یہاں پہ الیکشن ریلی کی، آپ نے اپنا وعدہ اثر نو یہاں پہ دہرایا۔ میں وہ وعدہ بھی آپ کو سنانا چاہوں گا۔ وزیر اعظم صاحب وعدہ کیا تھا 19 ستمبر کو 2024 19 ستمبر سری نگر میں، آپ پہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وعدے کو آپ پورا کریں، اس کمٹمنٹ کو آپ پورا کریں، جس کے تحت یہاں کی نوکریاں ریاست کشمیر کا حق جو ہے، یہاں کے لوگوں کا حق جو ہے، وہ ان کو واپس ملے، جس کے تحت ریاست جموں کشمیر کی جو زمین ہے، جس کا حق صرف اور صرف ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا ہے، وہ ان کو واپس ملے، جس کے تحت ریاست جموں کشمیر میں جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں، اس کے اوپر ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا حق ہے، وہ اس کو واپس ملے۔ آج
25 नवंबर को चूंकि पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो चुका है, हमारी एक प्रिंसिपल स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का प्रिंसिपल स्टैंड इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद भी एक ही रहा है। प्रदेश सदर ने रियासत का दर्जा इसी इजलास में बहाल कराने का मुतालबा किया। अब एक और मौजूद, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज नई दिल्ली से सऊदी अरब के लिए रवाना हुए, जहां वो उम्रा अदा करेंगे। वजीर आला के हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, MLA जड़ीबल तनवीर सादिक और MLA मुश्ताक गुरु भी हैं। इतलात के मुताबिक वजीर आला मक्का के साथ साथ मदीना भी जाएंगे और शनिचरवार को वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस तरह वो कुल 5 रोज तक सऊदी अरब में कायम करेंगे। अब एक और मौजू, सामीन मत्सल के चोटवारी देहात में गुज़श्ता दिनों हुई बर्फबारी से अंदरूनी सड़कें बंद होने के नतीजे में एक हामिला खातून को अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका और इसी के नतीजे में खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। वाकये के बाद से इलाके के लोगों में काफी नाराजगी पाई जा रही है और मत्सल के लोग हुकूमत, खास्ता और इंतजामिया पर इल्जाम आयद कर रहे हैं कि उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। मत्सल के लोगों ने आज फिर इंतजामिया के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज किया और कहा कि मत्सल अस्पताल में एक्सरे और USG जैसी सहूलियात भी दस्तियाब नहीं है और इस वजह से मरीजों को कुपवाड़ा मुंतकिल कराना नागुज़ीर बन जाता है, पर बर्फबारी इसमें भी हाइल हो जाती है। हमारी बागी मच्छल के साथ डिपार्टमेंट सेबो कुपवाड़ा हम इलाके मच्छल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कल जो हमारी बहन के साथ एक वाक़ा पेश आया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और पुरजोर अल्फाज में उसकी मजम्मत करती है कि जिस तरह से उनके रास्ते पे ही उसकी डिलीवरी हुई है। ये हुकूमत के लिए और सेबो कुपवाड़ा के लिए शेम है। हम शेम करते हैं उसके लिए, जिस तरह से उसने इस इलाकाई मच्छल के लिए यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट को बिल्कुल जो है न होने के बराबर रखा है। हम इसकी वज़ीर अब्दुल्ला साहब से इसकी बुज़ायद खुद मुदख्खल करने की अपील करते हैं। यहाँ पर हेल्थ के हवाले से कोई फैसिलिटीज नहीं है। अगर अस्पताल थोड़ा बहुत बनाया है, झूठा बोर्ड उसमें लगाया गया है PSC, लेकिन वो PSC नहीं है, न PSC है, न वो हेल्थ सेंटर है, न वो सब सेंटर है, उसमें कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ पर FMW कोई लेडीज रखा गया है, लोग अपने मन मर्जी से वो ड्यूटी देते हैं। इसके साथ बिली भगत है, सेबो कुपवाड़ा और देवो कलारू, वो इनके साथ बिली भगत है। जब उनकी मन मर्जी करते हैं तब वो अपनी ड्यूटी देते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये एक दूर दराज इलाका है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि 9 हल्के हैं, 9 पंचायत है, दूर दूर से लोग आते हैं। अगर अस्पताल में जाएंगे वहाँ पे किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज नहीं है। हम इलाके मच्छल के दूर दराज गाँव डप्पल से हैं। कल जो चूंटीवाड़ी में एक वाक़ा हुआ है, हमारी बहन के साथ जो डिलीवरी हुई है रास्ते में, उसके बारे में हम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को कड़ी से कड़ी मजम्मत करते हैं यहाँ पर कि हमारे अस्पताल में, हमारे पास यहाँ इलाके मच्छल में 20,000 से ज्यादा आबादी है। उस आबादी में एक हेल्थ सेंटर है दुधी में, लेकिन ना के बराबर। हम बार बार इस इंतजामिया से, चाहे LG हुकूमत थी, चाहे अब हमारी गवर्नमेंट बनी है, लोगों की गवर्नमेंट बनी है, हमने बार बार कहा कि हमारे अस्पताल को देख लो, इसमें मशीनरी रखो, लेकिन आज तक इस अस्पताल के बारे में किसी ने नहीं सोचा है। मामूली सी बर्फ पड़ने की वजह से अगर रोड हमारे बंद हो जाते हैं, हम गाड़ियां इधर उधर से नहीं आ सकते हैं, जैसा कि टीसेंट में हो गया, चोंटीबारी में। यहाँ अगर रोड खुला होता, कम से कम एम्बुलेंस चली जाती या प्राइवेट कोई गाड़ी होती जो उससे अस्पताल तक पहुंचे। अस्पताल तो है ही नहीं, फिर भी अगर वहां तक पहुंच जाती। लेकिन यहाँ जो अस्पताल है, हम किसी के ऊपर शिकायत नहीं करते या किसी का ये नहीं करते, लेकिन उस अस्पताल के अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है, मशीनरी बिल्कुल नहीं है उसमें। हाँ, अस्पताल है नाम का अस्पताल इन्होंने बना कर रखा है और वो अपना मन मर्जी से ये चला रहे हैं। हम गुजारिश करते हैं अपना
जेएंड के जो उमर अब्दुल्ला साहब है चीफ मिनिस्टर और एलजी साहब से भी और यहाँ कुपवाड़ा एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर आप यहाँ पर इंक्वायरी करवाइए। लेकिन हितू से हम खास कर गुजारिश करते हैं इस बारे में हमारा यहाँ जो भी है ये मुश्किलात ये हल कर दिए जाएंगे। We want मच्छल के साथ मच्छल के साथ यहाँ के साथ मच्छल के लोगों का महकमे सेहत और जिला अफसरान के खिलाफ एहतजाज। इस दौरान वजीर सेहत तालीम और सोशल वेलफेयर सकीना मसूद इत्तू की सदारत में आज डाक बंगला अनंतनाग में एक जायजा मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, डायरेक्टर जीएमसी, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के अलावा मुख्तलिफ महकमों के जिला अफसरान, जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरान शामिल रहे। काउंसिल असम्बली के तमाम मकामी मेंबरान भी इस मीटिंग में मौजूद है। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी और जरूरी खिदमात की फराहमी के हवाले से गुफ्तशनीद हुई और महकमों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। बताया जाता है कि इस मीटिंग में डीडीसीज भी मौजूद थे। इस मौके पर एमएलए डॉक्टर बशीर अहमद वीरे, पीरजादा मोहम्मद सईद, अल्ताफ अहमद कुलू, अब्दुल मजीद लारमी और चौधरी जफर कटाना ने दूर दराज इलाकों के तिबी मराकज में अमले और जरूरी साज सामान की दस्तियाबी यकीनी बनाने पर जोर दिया। वजीर सेहत सकीना इत्तू ने मेंबरान के खदशात को दुरुस्त करार देते हुए इस सम्त में जरूरी कार्रवाई का यकीन दिलाया। इस दौरान वजीर सेहत सकीना इत्तू ने आज देर शाम शेरबीन को बताया कि हेल्थ सेक्टर उनकी तरजीहात में शामिल है और वो जल्द अस्पतालों को मजीद मुस्तकम करेंगे। वजीर मसूद ने बताया कि अनंतनाग के शेरबाग में कायम बच्चा जच्चा अस्पताल को जल्द किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा क्योंकि वो इमारत गैर महफूज है। सकीना इत्तू ने बताया कि मच्छल मामले में जो कोई भी कसूरवार पाया जाएगा उसको सजा दी जाएगी। डिफिकल्टीज तो बहुत हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने शुरू से ही कहा है कि हेल्थ सेक्टर में हमारे पास बहुत मुश्किलें हैं क्योंकि ये वो सेक्टर है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने की जरूरत है। अगर आप बाकी डिपार्टमेंटों के बारे में थोड़ा सा कम भी सोच सकते, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है अल्लाह ताला के बाद लोग डॉक्टर और अस्पताल पे यकीन और भरोसा करते हैं। लेकिन जहाँ मैं लगभग जो कश्मीर वैली के हॉस्पिटल है गुरेज से लेके सारे हॉस्पिटल जो है सब डिस्ट्रिक्ट कहीं पे डिस्ट्रिक्ट जहाँ मैं गई, जहाँ मैंने विजिट किया है, उन जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका भी कहीं का मैंने विजिट किया है। लेकिन जो अनंतनाग जहाँ मैं आज गई थी वहाँ जो हमारे हॉस्पिटल है, एक है जंगलात मंडी, एक है शेरबाग, बहुत कंजेस्टेड है, बहुत मुश्किल है। जो शेरबाग वाली बिल्डिंग है वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स है, अनसेफ है वो बिल्डिंग। अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। आज मैंने एक रिव्यू मीटिंग ली जिस मीटिंग में मैंने फैसला किया है कि जितना जल्द हो सके हमें इस हॉस्पिटल को चिल्ड्रन वार्ड एंड गायनी वार्ड जो है उनको शिफ्ट करना है। तो मैंने जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारे ऑनरेबल एमएलए साहिबान जो साथ हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के, उनकी एक कमेटी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और अपने दोनों हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर एंड डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज दोनों को उसमें उस कमेटी में रखा है। वो विद इन 1 वीक जो है ये इसका रिपोर्ट देंगे और उसके बाद जो इनके सजेशंस होंगे शेरबाग वाला जो हॉस्पिटल है चिल्ड्रन वार्ड एंड गायनी वार्ड, उनको जितना इमीडिएट हम शिफ्ट कर पाए वो हमारे लिए बेहतर है। और पेशेंट्स के लिए खासकर हमारी सबसे अवलीन जो जिम्मेवारी है वो पेशेंट केयर है। एक तो वो कंजेस्टेड है, वहाँ जाने में पेशेंट को पहुंचने में ट्रैफिक जैम देखना पड़ता है और घंटों इंतजार करना है। और ऊपर से अंदर जो बिल्डिंग थी उसका भी मैंने पहले ही एक विजिट किया था, इससे कई एक महीने 15-20 दिन पहले। तो मुझे लगा वो बिल्डिंग सेफ नहीं है, वहाँ मुश्किल है पेशेंट केयर जो होता है वहाँ पे, वो एक अनसेफ बिल्डिंग है। तो उसके लिए ये कमेटी बनाई गई, विद इन 1 वीक जो है अपनी रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है इस हॉस्पिटल पे जो है आगे हमें कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। और दूसरा जो हमारा जंगलात मंडी है ये भी बहुत पुराना, इसका इमरजेंसी जो हाल है वो इतना बुरा हाल है, एक बेड पे 3 पेशेंट होते हैं और रश भी बहुत है इनके पास। हालांकि डॉक्टर्स काबिल है, वो अपना काम करते हैं, लेकिन कमियां हमारे पास बहुत है। इस हॉस्पिटल में भी हम कोशिश करेंगे, जो हमारा ये अनंतनाग वाला जीएमसी है, जो इनका नॉन क्लिनिकल साइड जो है उनको हम वहाँ शिफ्ट करेंगे। जो क्लिनिकल साइड है उनको हम जंगलात मंडी में रखेंगे ताकि वहाँ पेशेंटों को जो है और फैसिलिटी मिले और स्पेस मिले
ताकि उनका इलाज जो है डॉक्टर सही ढंग से कर पाए। एम्स ओंतीपोरा के बारे में बताया जा रहा है कि पिछले 10-15 साल से उस पे काम चल रहा है। अभी उसका टारगेट जो मुकम्मल था वो जनवरी 2025 था, लेकिन बताया जा रहा है कि 2025 जनवरी में भी वो टारगेट जो है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। के कुछ इश्यूज थे, कुछ कंसर्न थे, वो इश्यूज अब हमने उस पे जो है उनकी ऑलरेडी डिस्कशन हुई है, वो इश्यूज हल हो गए हैं उनके। लेकिन जब मैंने अभी उसका विजिट किया है एम्स, ये जो अवंतीपोरा वाला है, उस कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं गई, वहां मैंने उनके साथ मीटिंग की है। जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, CPW है उस फर्म का नाम, उनको मैंने क्लियर कट कहा है कुछ नहीं जानते हैं, आपका डिस्प्यूट जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जितना जल्दी हो सके आप हमें जो टारगेट हमारा है अब 2025 नेक्स्ट ईयर, आपको बिल्डिंग जो है वो कमीशन करनी है और यहाँ पे आपको 100 MBBS के स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन कराना है और उनको जो है आगे पढ़ाना है। और बाकी जो हॉस्पिटल का जो बाकी जो बिल्डिंग्स है, सबसे इम्पोर्टेंट है जो मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग है, मैंने कहा उसको जितना आप जल्दी कंप्लीट कर सके वो हमें करके दीजिए। हालांकि रोड बाकी चीजें तो सब उनकी कंप्लीट है, लेकिन जो मेन बिल्डिंग्स है, जो स्ट्रक्चर उनके कई स्ट्रक्चर हैं, बहुत अच्छी स्पेस है, वो बहुत एक टाइम पे वो बहुत बड़ा खूबसूरत जो है हमारा वहाँ पे एम्स होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हमने उनको टारगेट दिया है और वो रिकॉर्ड टाइम में इसको कंप्लीट, मैंने उनको क्लियर कह दिया है कि रिकॉर्ड टाइम में हमें ये एम्स जो है वो कंप्लीट चाहिए, जो हमारा मेन मकसद ये एम्स बनने का था वो पूरा होना चाहिए। कल मच्छल में एक वाक़ा पेश आया है, तो आपको नहीं लगता है कि आज के जदीद दौर में इस तरह के वाक़ात इन इलाकों में अभी भी पेश आए? ये अच्छी बात नहीं है। नहीं आने चाहिए पेश, क्योंकि इतना जमाना आगे बढ़ चुका है और हेल्थ सेक्टर मैंने पहले कहा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने पहले कहा है कि बहुत कमियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत मुश्किलें हैं। इन मुश्किलों को ठीक करने में कुछ टाइम लगेगा, इमीडिएट नहीं हो सकता। लेकिन जो कल का वाक़ा है, एक हमारी प्रेग्नेंट जो लेडी थी वहाँ, हमारी बहन, उसको एम्बुलेंस टाइम पे नहीं दिया गया, उसके लिए ऑलरेडी इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। हमने 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट जो है मैंने हेल्थ सेक्रेटरी को कहा है कि इमीडिएट आप लाइए, जो भी रेस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए खिलाफ जो एक्शन होगी वो डिपार्टमेंट जरूर लेगा, ताकि आइंदा से इस तरह के हादसात जो है वो पेश ना आ सके। मच्छल मामले में तमाम कसूरवारों को सजा दी जाएगी, बात कर रही थी वजीर सेहत सकीना इत्तू। इधर मुश्ताक देव ने किश्तवाड़ से खबर दी है कि इलाका वड़वन के लोग वहां माकूल तिब्बी सहूलियात न होने पर काफी नाराज हैं। बताया जाता है कि गुज़श्ता शब मोहम्मद एहसन रातर नामी एक बीमार को जब न्यू टाइप हेल्थ सेंटर लाया गया तो वहां कोई डॉक्टर ही नहीं था। बीमार की हालत बिगड़ जाने के बाद उसकी मौत हुई। इलाके के लोगों ने डॉक्टर की तैनाती और इस वाक़े की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज में काम कर रहे 180 के करीब आरजी मुलाजमीन को गुज़श्ता 5 माह से उजरतें वागुजार नहीं हुई हैं, जिस वजह से ये आरजी मुलाजमीन शदीद माली मसाइल का सामना कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज के आरजी मुलाजमीन का कहना है कि इस अहम इदारे की IINO की तरफ कभी कोई तवज्जो नहीं दी गई और इदारे को एक साजिश के तौर तबाह किया जा रहा है, जबकि यहाँ के मुलाजमीन को दूसरे महकमों में डेपुटेशन पर भेजकर कॉरपोरेशन की तबाही यकीनी बनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज के आरजी मुलाजमीन हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज को दोबारा पटरी पर लाने और इसे एक मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए दूररस इकदाम किए जाएं और साथ ही आरजी मुलाजमीन जिन्होंने इदारे को अपने खून पसीने से सेंचा है कि वाजिबुल अदा उजरतें वागुजार कराई जाए और मुस्तकबिल में भी उजरतों की बाकायदगी यकीनी बनाई जाए। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामिन, पाहू पुलवामा में JK बैंक ATM गुज़श्ता चंद माह से बंद पड़ा है, जिस वजह से पाहू और इसके गिरदनवाह के बैंक सार्फिन को सख्त परेशानियों से गुजरना पड़ता है और बवक्त जरूरत उन्हें 2 किलोमीटर दूर काकापोरा या फिर
रतनीपुरा जाकर हुकूमत निकालना पड़ती हैं। पाहो के बाशिंदों ने शहरबीन को बताया कि चंद माह कबल बाज समाज दुश्मन अनासिर ने एटीएम के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की थी, जिसके बाद से बैंक हुकाम ने एटीएम को ही बंद कर दिया और यूं सारिफीन के लिए परेशानियां खड़ा कर दी गई हैं। पाहो पुलवामा के बैंक सारिफीन ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन से अपील की है कि इस मामले को जरा देखा जाए और एटीएम को काबिल कार बनाकर सारिफीन को राहत दी जाए। आज लेक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक वफ्द अनंतनाग में वजीर तालीम सकीना इत्तू से मुलाकात हुआ और उन्हें याददाश्त पेश की, जिसमें इंचार्ज लेक्चररों की कन्फर्मेशन समेत दीगर मामलात हल कराने की अपील की गई। वजीर तालीम ने इंचार्ज लेक्चररों के हक में जल्द से जल्द डीपीसी मुनक्कद कराने का यकीन दिलाया है। वफ्द में कोऑर्डिनेटर नासिर शबीर समेत दीगर ज़ुबा शामिल थे। ज़मीन आला तालीम महकमे के डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों में दाखिले की नोटिफिकेशन जारी की और तमाम उम्मीदवारों से कहा गया कि वो 28 नवंबर तक ऑनलाइन दरखास्तें जमा करा सकते हैं। वाज़ेह है कि दरखास्तें सिर्फ वो उम्मीदवार दे सकते हैं जिन्होंने हाल ही में बायएनुअल इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है और वो कॉलेजों में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद हैं। डायरेक्टर कॉलेज जम्मू कश्मीर डॉक्टर शेख एजाज बशीर ने आज शाम शहरबीन से बात करते हुए कहा कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मुतल्लिका कॉलेजों से रास्त भी राब्ता कर सकते हैं और उम्मीदवार पोर्टल लिंक पर भी दरखास्तें जमा करा सकते हैं। देखिए, ये एडमिशन विंडो हमने ओपन की है। हमारे पास बायएनुअल में बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। अभी हायर सेकेंडरी पार्ट 2 एग्जामिनेशन उन्हें दिया है तो वो अभी पास हुए हैं। अच्छा नंबर है उन स्टूडेंट्स का एंड दे वांट देयर एडमिशन इन द कॉलेज। तो हमने एक विंडो ओपन की है फ्रॉम 21 to 28 तक हम उन स्टूडेंट्स को एडमिशन दे देंगे अपने कॉलेज में एज पर द अवेलेबल वैकेंसीज, जहां जहां पर हमारे पास प्रोग्राम्स में वैकेंसीज होंगी। थ्रू आउट द यूटी है सारे कॉलेज में, हमारे पास जो 140 कॉलेज हैं सब कॉलेज में ये अवेलेबल है, लेकिन एज पर द वैकेंसी जहां पर वैकेंसी होगी। सारा हमारा ई समर्थ पोर्टल पे है। हमने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि इमीडिएटली वो अपने ई समर्थ पोर्टल पे जाएं, वहां देखें कहां कहां वैकेंसी है, वहां अप्लाई करें और कॉलेज में भी जाएं। हमने कॉलेज में भी फैसिलिटेशन सेंटर्स क्रिएट किए हैं तो वहां पर भी वो जा सकते हैं। कब तक ये ऑनलाइन? 28 तारीख तक। इसमें ये है कि 21 तारीख से हमने शुरू किया है तो आफ्टर एवरी 2 डेज हम एक लिस्ट निकालते हैं स्टूडेंट्स का, तो उनको बोलते हैं फीस डिपॉजिट करने के लिए। तो 28 तारीख तक ये रहेगा, लेकिन मेरी स्टूडेंट्स के लिए अपील ये रहेगी कि वो इमीडिएटली जाएं, इमीडिएटली समर्थ पोर्टल पे चेक करें या कॉलेज में जाएं, वहां देखें जहां वैकेंसीज हैं, उन वैकेंसीज के अगेंस्ट वो अप्लाई करें। ये थे डायरेक्टर कॉलेज जम्मू कश्मीर शेख एजाज बशीर। कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन कश्मीर की तरफ से 28 नवंबर को गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सुंबुल में एक तकरीब मुनक्कद होगी, जिस दौरान शायर और कलमकार सईद आबिद गौहर के शेरी मजमूए अविल एहसास की रस्म रोनुमाई अंजाम दी जाएगी। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के जिला सदर इम्तियाज सुहेल की सदारत में आज डेलीगेशन ने एसडीएम रामसू से मुलाकात की और 4 लेन की तामीर के दौरान मुतासर कुंबों की शिकायत उन तक पहुंचाई। इम्तियाज अहमद सुहेल ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि मुतासर कुंबों को माकूल मुआवजा और रोजगार दिया जाए। पीडीएफ के चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने इल्जाम लगाया कि चंद ब्यूरोक्रेट और सियासी लीडरान वादी में प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं और आपसी साजबाज से वो आम आदमी को लूट रहे हैं, जिस वजह से सरकारी तालीमी इदारों को नुकसान पहुंच रहा है। हकीम मोहम्मद यासीन ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला और वजीर तालीम सकीना इत्तू से मुतालबा किया कि इस नेक्सस को रोका जाए और प्राइवेट स्कूलों की माहाना फीस में कमी की जाए। श्रीनगर में महकमा हार्टिकल्चर एक जदीद तर्ज का एक सिल्क वर्म सीड सेंटर कायम कर रहा है। इन बातों का इजहार आज डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आलोची बाग श्रीनगर में सेंटर के लिए अराजी के मुआयने के दौरान किया। एजाज अहमद भट्ट ने बताया कि जदीद तर्ज का सिल्क वर्म सीड सेंटर 3.21 करोड़ से तैयार किया जा रहा है, जहां हर साल 10 लाख DFLs तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ। चाहते हैं अपने मेजबान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।